सम्मान्य चौधरी सर से विनती करूंगा कि अपने विचार हमारे साथ में रखें। Hello. Good evening, friends. Good evening, sir. Good evening, sir. नहीं, गाड़ी वाली good evening नहीं लगी. Good evening. Good evening. अब लगी। Good evening. मोबाइल पे पर Good evening. हम लोग एक परिवार को बिलोंग करते हैं. सबसे पहले अपना परिवार और उसके बाद का जो दूसरा परिवार है वो मोबाइल पे परिवार. और ये परिवार अभी शुरू हुआ है. मैं ऐसा मानता हूँ और आप भी मेरे साथ देंगे कि ये अभी परिवार शुरू हुआ है. Yes. तो शुरू होने में बहुत छोटा होता है. Anyway, so I warmly welcome all of you on the occasion of our company's first anniversary, and I hope you will enjoy being a part of it. Last year, of course, on the same day, all of you guys remember, last year, the same day, we started our source of income. So, Mobile Pay started with the incorporation of core human values such as transparency, trust, and all of your teamwork. It is triple T: transparency, trust, and with the teamwork. I have always tried my level best to offer my teams a better business income source, as you know very well. Flexible work culture and perfect learning atmosphere. Learning atmosphere. We all know we already achieved another milestone in terms of the learning. Since the beginning, we give the learning, we give the lessons, we give the training every day 9 p.m. Every day. You remember, guys. I hope this is the first company from the day one to till now. We give the training as well as the learning process at 9 p.m. every day without fail anything, except after some time, Sunday we do not give, but before we give all the 7 days. So if I am talking about the learning phases, which is very, very long way, we already teach many people's, lack of people's, we already give the trainings, we already give the process, what exactly is mobile pay and what exactly it is the e-commerce industry. I know very few people who does not know before that what is the MDR. I know very few people. But now this time everybody knows in terms of the mobile pay parivar member, everybody knows what exactly the e-commerce, what exactly is the MDRs. So training, our companies give a very good platform, but now we need to implement more training and more training for the upcoming years also and upcoming days also. So on today's occasion, I would like to say a few words about our journey. See, companies are like a families. हम अपनी कंपनीज को अगर अपना फैमिली मेंबर समझेंगे तो अपनी फैमिली के लिए हम क्या क्या करते हैं उसके हिसाब से अगर कंपनी के लिए करेंगे तो आप समझिए जैसे फैमिली में हम पूरा लाइफ निकाल देते हैं फिर भी शायद कोई ग्रेजेस नहीं होते, तो वैसे ही कंपनी में अगर हम ये फैमिली मेंबर की तरह कंपनी समझेंगे तो लाइफ निकालेंगे कोई ग्रेजेस नहीं होंगे. So in a family we take care of each other's well-being and make sure that everything goes smoothly. Similarly, we are all a family. Here we all take care of each other's, take care of the responsibilities we have so that we can all make our dream come true. The dream of making it a company known for its quality services and the commitment to work. Guys, हम
हम जब छोटे सभी छोटे थे ना, बड़े तो नहीं कोई पैदा हो, सभी छोटे थे ना कभी ना कभी। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, क्योंकि हम शायद यहाँ पर मिड एज के ऊपर वाले लोग हैं, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं। आप याद करिए कि क्या कभी कोई जब बच्चा था तो वो एक साथ चलना शुरू कर दिया था? मेरे ख्याल से पॉसिबल ही नहीं होता कि आप पहले ही बार में चलना शुरू कर दो सीधा गिरोह में। लेकिन जब बच्चा चलता है और वो गिरता है तो माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप कभी ये नहीं कहते कि मत गिर, क्योंकि सब जानते हैं कि गिरने के बाद ही चलना सीखेगा। अगर वो गिरेगा नहीं तो वो चलना भी नहीं सीखेगा। मैं ये मानता हूं कि कोई भी कंपनी की शुरुआत कभी भी, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी की आप बात कर लीजिए, ऐसा फोरम है कि इसमें मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन किसी भी कंपनी की शुरुआत बिना गिरे नहीं हो सकती, बिना हर्डल्स के नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसी कंपनी आपकी नजर में आएगी जो जिसमें कोई हर्डल ही नहीं था, तो आप देखना वो चल नहीं पाएगी। अगर कोई बच्चा ऐसा हो कि जो गिरे नहीं, तो वो देखना वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि फिर उसमें कोई ना कोई कमी होगी, कोई ना कोई मेडिकल अनफिट होगा। लेकिन हर माँ बाप कभी भी ये नहीं चाहता कि वो बच्चा गिरे नहीं और चलना शुरू कर दे। ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे, और मैं अपने आप को भी कहता हूं कि आज हम जहां पर पहुंचे एक साल के अंदर, हम सभी जानते हैं कि हमारे हर्डल्स थे, लेकिन हर्डल होने का मतलब ये नहीं है कि हम कभी चलेंगे नहीं या दौड़ेंगे नहीं। ये हर्डल होने का मतलब नहीं होता। हर्डल होने का मतलब ये है कि हम 100% चलेंगे, क्योंकि अगर हम हर्डल नहीं होते तो शायद एक डाउट होता कि शायद हम ना चल पाए। बट ऐसा मैं मानता हूं और आप भी सभी मानेंगे कि हर्डल है, इसका मतलब हम चलेंगे भी और दौड़ेंगे भी। और आप लोगों ने अभी तक जो करके दिखाया है वो परफेक्टली फाइन कि हम चले भी हैं, दौड़े भी हैं, रिकॉर्ड भी बनाए हैं अभी तक, जो आप सभी लोग जानते हैं। फर्स्ट ईयर कंपनी का हो रहा है आज, और उस फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने जो किया है वो शायद ही किसी कंपनी में फर्स्ट ईयर में हुआ हो, चाहे वो अमेजन पे हो। In the last 1 year, we have seen many things, up and downs, high places and lows, celebration and crisis. जो हमारे मेरे बहुत क्लोज है वो क्राइसिस जानते हैं क्या क्या होता है। Pandemic situation like COVID, hectic situation and everything, but the one thing we never did was never ever give up. हमारे साथ जो पहले दिन से हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी परसेंटेज आज भी पहले दिन वाली ज्यादा है हमारे साथ। जनरली कंपनियों में ये नहीं होता, ये लोग आते हैं जाते हैं। So this out faith in each other, on trust on each other, and our commitment to each other. I will never see this 1 year journey without you. Our mobile पे परिवार are always my strength and span of the company. ये लाइफ है फ्रेंड्स। आप सभी लोग अपनी हिस्ट्री जरूर देखिएगा, एक बार पीछे देखिएगा अपने में जाके कि आप आज जो हैं क्या वो बनना चाहते थे। ऐसा नहीं होता। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस समय हमारे सपने कुछ और होते हैं, हमारी सोच कुछ और होती है। हम इस 99.99% ये होता है कि हम जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते। हम जो स्टार्ट करते हैं लाइफ जहां से, जो सोचते हैं कि हम ये बनेंगे, वो नहीं बन पाते। लेकिन जो बन जाते हैं वो सोचा नहीं होता। मेरी अपनी लाइफ की शुरुआत वैसे ही हुई। मैंने जब ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, 12th में रहा था, नॉट ग्रेजुएशन, 12th में, तब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में जाऊंगा, फाइनेंस बिजनेस में जाऊंगा। और मुझे लगता था यार फाइनेंस सबसे ज्यादा खराब है, इंश्योरेंस या फाइनेंस सबसे ज्यादा टफेस्ट बिजनेस है। मुझे लगता है यार ये नहीं है। लेकिन आप शायद जानते हैं कि मेरा पहला प्रोसेस ही स्टार्ट हुआ फाइनेंस से। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने क्या सोचा था, क्या बनना चाहते थे और क्या हुआ। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो भी किया वो किस तरह से किया। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है
कि आप जहां भी थे वहां पर आपने उसको किस प्रोसेस से किया, कितने अच्छे से किया कि आपने उसको भी टॉप किया, जिसको आप नहीं चाहते थे वहां गए लेकिन वहां भी टॉप किया। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सभी लोगों को कुछ न कुछ तो करना पड़ता है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस सिस्टम। एक और ऐसी 2-3 दिन पहले मेरे दिमाग में बात आई कि अगर दादा या परदादा मरने के बाद, जब ज्यादा ओल्ड एज हो गए मर गए, और उनके बाद बाई चांस आप किसी को उनका एक पेपर मिले कि यार मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा हूं, बहुत सारा दबा हुआ माल छोड़ के जा रहा हूं, ये मैंने सुना नहीं है, ये बनाई है मैंने अपना, मतलब एक यूज किया कि अगर ऐसा हो तो जितने फैमिली मेंबर होंगे सारे उस कागज के बेस पर, जिनको कुछ नहीं पता कि कहां छुपाया होगा, दिमाग लगाएंगे, खेत में छुपाया होगा, घर में छुपाया होगा, कहां छुपाया होगा, और खोदना शुरू कर देंगे। आपने अपने दिमाग के हिसाब से खोदना शुरू कर देंगे, बिना ये सोचे समझे कि एक्चुअल में क्या ऐसा कुछ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, एक्चुअल में कुछ ऐसा छोड़ के गए होंगे कि नहीं गए होंगे, जिसका हमको पता नहीं होता, हम उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। एक सिर्फ सोच की वजह से कि किसी ने बोल दिया, हमने शुरू कर दिया। लेकिन जो आपके सामने दिख रहा है कि आपको पता है कि मुझे ये करने से ये हो जाएगा, हम उसमें एफर्ट कम डालते हैं। जो एक सपना होता है उस पर, सपना इन द सेंस जो एक कहानी कहीं से पता लगी उस पर आपने शुरू कर दिया। मेरा मतलब इस बात को कहने का सिर्फ ये है कि हम इस तरह की किसी भी चीज में जिसमें लोग, कोई भी आपको आके कहता है कि आप यहाँ पर ऐसा करो तो आपको ये हो जाएगा, वो दादाजी परदादाजी तो चलो एक स्टोरी थी, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई ऐसा होता। मैं सोचता हूँ, बहुत सारी कंपनियों के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप लोग मुझे इंफॉर्मेशन देते हो कि ये नई कंपनी आ गई और वो ये ऐसे कर रही है, वो वैसा कर रही है। बहुत सारी वर्ड नहीं यूज करूंगा, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि वो रात में ऐसे, दिन में सुबह ऐसे हो जाएगा, 3 साल में ऐसे हो जाएगा, 2 साल में ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा पॉसिबल होता लाइफ में, तो क्या हमारे से ज्यादा पैसे वाले अंबानी और अडानी नहीं है? क्या हमारे से ज्यादा लोग उनके पास नहीं है? क्या हमारे से ज्यादा या उन कंपनियों से ज्यादा सोर्सेस उनके पास नहीं है? क्या फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है? अगर ये कंपनी उसको कर सकती है 6 महीने में, तो वो तो शायद 6 दिन में कर देंगे। वो लोग क्यों नहीं करते? हम लोग नहीं सोचते, क्योंकि सिर्फ हम लोग आज का देखते हैं कि आज क्या होने वाला है, कल का नहीं सोचते। और ये सभी लोग कल का सोचते हैं, इसीलिए शायद वो वहां पहुंच गए जहां पर हम सभी लोग पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि आज में नहीं है कुछ भी। हम लोग खेती करते हैं, हम लोग आम का पेड़ लगाते हैं ना बहुत सारे लोग, तो क्या पेड़ लगाते हैं फल देना शुरू करते हैं? तो हम क्यों लगाते हैं फिर उसको? क्योंकि अगर आज हम लगाएंगे तो 4-5 साल के बाद फिर हर साल उससे उसका फैमिली का खर्चा चलेगा। 4-5 साल मेहनत करने के बाद किसान को भी कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कंपनियों के थ्रू कि भाई तुम भी पेड़ लगाओ, कल से फल आ जाएगा। सो ये बहुत जरूरी है हम सभी को सोचना कि एक्चुअली आज जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका हमको आगे क्या मिलने वाला है, और मेहनत भी कैसे। जिराफ की स्टोरी मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं, मदर जिराफ। मुझे लगता नहीं है नई स्टोरी है कि मदर जिराफ का जब बच्चा वो देती है तो बच्चा देने के तुरंत बाद उसमें वो लात मारती। क्यों मारती? क्योंकि उसको ये पता है कि आपको चलना शुरू करना है, आपको अब यहां से बचना शुरू करना है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस बच्चे को लेने के लिए या छीनने के लिए तैयार है जंगल में। तो उसको इसीलिए वो जगाती है कि आप चलना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो, अपने आप को बचाना शुरू करो। पैदा होते माँ का अगर आप रूप देखेंगे तो माँ को पैदा होते ही बच्चे में लात मारना इट्स नॉट एन इजी जोक, जबकि वो जब बच्चा पैदा होता है ऐसा माना जाता है कि बहुत हैवी वेट का होता है। इवन देन इसका ये है कि हम जो भी हमारे यूजर्स हैं, हमारे जो सीयूजी मेंबर्स हैं, हम अगर अपने सीयूजी मेंबर को जोड़ के अगर छोड़ देंगे
हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम उनको नहीं बताएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, तो वो काम आपका वहीं के वहीं रुक जाएगा। एक तरीके से वो बच्चा उनका मर जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सीयूजी को अपने तरीके से, जो भी आप एक तरीका अपनाते हैं, उससे हम उसको आगे समझाएं। For making MobilePay as a successful brand, all we work very hardly, managing work hours, early entry into the system, working from home during the lockdown period. We have done all this when work has been demanded. आप सभी को पता है 2 महीने का लॉकडाउन था, फिर भी हमने पूरे ऑफिस घर से चलाए। All these done for the beginning to a big journey of success, and congratulate yourself and congratulate each other in our parivar for being able to achieve so much. So much achieve. What does it mean, so much achieve? Everybody actually, whatever they earned without any investment. Whatever they earned without any hardcore process. They earn without any liability. They earn without any limitations. Whatever you have to earn. आज तक वो काम आप आज तक करते आ रहे थे, लेकिन उसको करने पर आपको कुछ नहीं मिला। यहाँ पर जो भी मिला वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मिलता नहीं है उस चीज पर। टीम, आई एम grateful to all of you. Let's make a day of memorable for ourselves and for the days ahead, so that the chariot of our journey to success does not stop here, but it lasted for many years. Many more achievements, many more anniversaries, many more success stories, and many more achievements have not yet come in our way. Until then, just keep up good work and have an aspiration of more. As they say, those who dream big, they got big. सपना, अगर आप सपना नहीं देख सकते तो आप वो पूरा कैसे करेंगे? सपना क्या होता है? हम सपना होता है कि हम सुबह, हमारा कोई भी सपना है, हमें घर लेना है, सपना है। सपना नहीं देखेंगे तो पूरा कैसे करेंगे? हम सभी लोग भगवान को मानते हैं? Yes, sir. Yes, sir. या हम सब प्राइम मिनिस्टर का घर जानते हैं? नहीं। घर कहाँ है? वो दिल्ली में, जानते हैं। और मिनिस्टर का भी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो गूगल से ढूंढ लेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि सक्सेस कहां पर मिलती है? हम भगवान को ढूंढने के लिए भगवान के मंदिर चले जाते हैं। मंत्री से मिलना है उसके चले जाएंगे, रिश्तेदार से मिलना है तो उसके घर चले जाएंगे, हम फ्रेंड से मिलना है तो फ्रेंड के घर चले जाएंगे। लेकिन आप में से कोई ये बता सकते हैं सक्सेस कहां मिलती है? अपॉर्चुनिटीज कहां मिलती है? कोई बता सकता है कहां मिलती है? बहुत लोग बात करते हैं इसके ऊपर। कोई बता सकता है सक्सेस कहां मिलती है? जहां से जाके मैं ला पाऊं या आप लोग ला पाओ, या अपॉर्चुनिटीज कहां मिलती है? ये क्यों नहीं कहीं पर मिलती? एनीबॉडी कैन आंसर? सर, अपना दृढ़ विश्वास करके और अपने मन से किसी काम को करना, यही सक्सेस है मेरा अनुभव से। ये आप देखिए, आप लोग उसका आंसर नहीं दे पाए। एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस दोनों आपके अंदर है, वो इसीलिए कहीं नहीं मिलती, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पाते। ये दोनों चीजें क्यों कहीं नहीं मिलती? भगवान का मंदिर, अल्लाह का मस्जिद, गुरुद्वारा, सब मिलता है ना, बट इन दोनों चीजों के लिए हमें कोई एड्रेस क्यों नहीं देता कि ये कहां मिलेंगे? क्योंकि ये आपके अंदर है, ये आपके अपने अंदर है, हम उसको ढूंढ नहीं पाते। हमें उनको ढूंढना है, उनको जगाना है और उसको पाना है।
जो इसको ढूंढ लेगा वो 100% उसको पा लेगा। नहीं तो आप कल से इसको फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके देखिए कि आपके अंदर ही वो चीज है जिसको आप इधर उधर ढूंढते रहते हो। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि अगर मैं रास्ते में चल रहा हूं, सामने गड्ढा है, मैं उससे नहीं बचूंगा तो उसमें गिर जाऊंगा। सभी लोग जानते हैं, हम उससे बच जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चीजें हैं हम उससे ढूंढ नहीं पाते। फ्रेंड्स, opportunities and success never coming up at your door. Never they will knock your door. No. कभी भी अपॉर्चुनिटी और सक्सेस आपका घर का दरवाजा नहीं खटखटाएगी। अगर आप उसका वेट कर रहे हैं कि मेरे घर पे आके वो खटखटाएगी गेट तब मैं कुछ करूंगा, वो नहीं होगा। आपको उसको ढूंढना है, वो भी आपको अपने अंदर से ढूंढना है। और 100% आई एम टेलिंग यू, पूरा देश आज सुनना है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। जो इसको करेगा वो अचीव कर लेगा। और जो भी आज तक जिन लोग जो भी अचीव हुए हैं, जो भी अचीवमेंट लोगों ने किए हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मोबाइल पे ओनली, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, कि जो भी लोग सक्सेस हुए हैं वो लोग 100% अपने अंदर की कैपेसिटी को पहचान पाए हैं कि मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है और मैं क्या काम कर सकता हूं। और जो लोग नहीं सक्सेस हुए वो वेट कर रहे हैं, जो वेट कभी पूरा नहीं है। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो जस्ट सी इन योर इनसाइड एंड फाइंड आउट व्हाट इज योर बेस्ट पॉसिबिलिटीज, व्हाट इज योर बेस्ट स्ट्रेंथ। आपके अंदर की स्ट्रेंथ क्या है और उस स्ट्रेंथ पर आप काम करना शुरू करें। 100% आपको वो सक्सेस मिलेगी और अगले साल के एनिवर्सरी पर आप ये बताएंगे कि ये मुझे इस वजह से मिला है, क्योंकि हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, कोई कहीं नहीं जाने वाला है। सो लेट्स नॉट स्टॉप ड्रीमिंग ऑफ योरसेल्फ, लेट्स नॉट स्टॉप बिलीविंग योरसेल्फ, लेट्स नॉट सेटल फॉर लेस एंड डू नॉट लिमिट योरसेल्फ। आपने इन तीनों में से कुछ भी किया तो वो आपके सक्सेस को रोकेगा। दिस इज योर डे, आवर डे, एंड वी विल मेक इट मेमोरेबल फॉर एवर। आई वुड लाइक टू थैंक यू माई स्टाफ, माई कोर टीम मेंबर्स and my team members, especially because without staff and core team member, this journey is not possible for any company, for me. So thank you all of you once again. Thank you very much.